السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ زراعت کلاس 7 پہلا چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پودے کی کتنی قسمیں آتی ہیں، پودے کتنی قسم کے طریقے ہیں لگانے کے، اور کس موسم میں کس مطابقت کے ساتھ پودے پلتے بڑھتے ہیں۔ اب ایک اگلا بہت ہی اہم ٹاپک کہ پودے کی نشو و نما کے لیے، اس کی بڑھوتری اور گروتھ کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کم کر دیتے ہیں تو پودے کی بڑھوتری پہ، گروتھ پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پودے کے نشو و نما کے لیے ضروری عوامل مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے یہ روشنی یا لائٹ۔ پودوں کی نشو و نما کے لیے روشنی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پھل پکنے کے لیے دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پودوں کے پتے پودے کی خوراک تیار کرتے ہیں۔ پتے کی خوراک روشنی اور دوسرے عوامل کی مدد سے تیار کرتے ہیں۔ روشنی کی صحیح مقدار ملنے سے پودے کو ضرورت کے مطابق خوراک مل جاتی ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہوتی ہے۔ روشنی بعض بیماریوں کے جراثیم مارنے کے لیے بھی مفید ہے۔ جس میں باغ کے پودے نہایت گھنے ہوں وہاں روشنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے نتیجے میں وہاں جراثیم پرورش پا کر پودوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں چھوٹی کلاسز میں کہ فوٹو سینتھسس یا ذیلی تعلیف کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں پودا زمین سے نمکیات، ہمارے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی لے کے اپنا فوٹو سینتھسس یا ذیلی تعلیف کا عمل پورا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے۔ وہی چیز یہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہے، اور اس خوراک تیار کرنے کے عمل کے لیے ہی روشنی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب پودے کے پھل پکتے ہیں، انہیں پکنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو پھل دیر لگائیں گے پکنے میں، اور اس دوران وہ پھل خراب ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو روشنی کا عمل سب سے پہلا اور سب سے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بعض بیماریوں کے جراثیم جو ہیں وہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتے رہتے ہیں، اور اگر روشنی میں صحیح مقدار میں ملتی رہے تو وہ جراثیم اپنے آپ مر جاتے ہیں، پودا ان کے ساتھ لڑ لیتا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ ہم نے فار ایگزامپل پودے سارے دھوپ میں لگائے ہیں لیکن پھر بھی لائٹ کا پرابلم ہے، تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے آپ نے وہ پودے بہت گھنے لگائے ہوں، ان کا آپس میں فاصلہ کم ہو، تو آپ جب بھی کوئی باغ لگاتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں یا کھیت میں کوئی پودے لگاتے ہیں، آپ کو باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے پودوں کا آپسی فاصلہ، درمیانی فاصلہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ پودا جب بڑھنا شروع کرے، اس کی شاخیں نکلیں، پودا پھیلے، تب بھی اس کے پاس اپنے حصے کی مکمل جگہ ہو، وہ پوری طرح سے روشنی لے سکے، اپنی پوری طرح سے خوراک بنا سکے، بڑھوتری ٹھیک ہو، گروتھ ٹھیک ہو، اور اس کے بعد جب پھل پکنے کا عمل ہے تو پھل بھی اس پہ ٹھیک لگے، اپنے وقت پہ وہ پک جائے، اور جراثیم سے لڑنے کی طاقت بھی اس پودے کے اندر موجود ہو۔ ورنہ وہی جراثیم جیسے انسانوں میں نقصان دیتے ہیں، پودوں کے بھی اپنے جراثیم ہوتے ہیں، اپنی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ پودوں کو نقصان دیتی ہیں، خراب کرتی ہیں۔ اب ایسے پودے بھی ہیں جن کی بہتر جو پرورش ہے وہ سائے میں ہوتی ہے، یا ٹھنڈے علاقوں کے وہ پودے ہوتے ہیں جن کو سائے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، وہ ذرا دھوپ برداشت نہیں کر پاتے، یا اس میں جو ان کا نارمل پروسیس آف گروئنگ ہے، بڑھنے کا ایک قدرتی عمل ہے، اس پہ دھوپ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوگی کہ اس کا تنا موٹا ہو جاتا ہے۔ تنا یعنی مین جو اسٹیم ہے، اس کا جو زمین سے اس کو گرپ کر کے پکڑ کے اوپر لا رہا ہے، اس کا سائز عام طور پہ جتنا ہوتا ہے اس سے موٹا ہو جاتا ہے۔ شاخیں زیادہ پھیل جاتی ہیں کیونکہ جب اس کو خوراک زیادہ ملے گی، اس کی گروتھ زیادہ ہوگی، شاخیں زیادہ بنے گی، تو انہیں دھوپ کے لیے زیادہ آگے تک سفر کرنا پڑے گا، اس لیے شاخیں زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ اس کی کانٹوں کے درمیانی حصے چھوٹے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ پودے کی جڑیں لمبی ہو جاتی ہیں، اوپر سے زیادہ فوٹو سینتھسس کا عمل تیز ہو رہا ہے تو نیچے سے بھی اس کی جڑوں کو زیادہ پانی اور نمکیات جذب کرنا پڑیں گی،
जिसके लिए उन जड़ों को लंबा होना पड़ेगा, वो आगे बढ़ती जाएंगी। बुखारात के ज़रिए पानी का ज़िया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ रही है तो वेपोरेशन का अमल भी ज़्यादा हो जाता है, बुखारात उड़ने का अमल भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे पानी ज़ाया होना शुरू हो जाता है। पौधे में नमकियात का इजाफा हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेस तेज़ हो गया तो ज़मीन से जो वो नमकियात ले रहा है वो भी ज़्यादा लेगा और ज़्यादा जज्ब करेगा, तो उसमें नमकियात का इजाफा हो जाएगा, नबाताती बढ़ोतरी में कमी हो जाती है। इस तरह से जो उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ है या नबाताती बढ़ोतरी है उसमें कमी हो जाती है। ये जो एक बड़ी इसमें ख़राबी आती है वो ये है कि उसकी नबाताती बढ़ोतरी में कमी रहती है और पौधा आपको दूसरे पौधों से छोटा, कमज़ोर और निस्बतन बीमारियों से ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आता है। दूसरा इसका जो बहुत ही अहम फैक्टर है वो है दर्जे हरारत, टेम्परेचर कितना हो। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी पौधे हैं, अगर आप किसी दूसरे इलाके में जाते हैं जहाँ पे रेगिस्तान हो वहाँ पे और किस्म के पौधे हैं, अगर आप पहाड़ियों पे चले जाएं वहाँ पे और किस्म के पौधे हैं, अगर कोई ऐसा इलाका जहाँ पे नहरें वगैरह हों वहाँ पे और किस्म के पौधे हैं। तो क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहा है, उस हिसाब से उनमें सारे ना सही लेकिन कुछ पौधों में, आधे से ज़्यादा पौधों में फ़र्क आ जाता है। उस इलाके के पौधे मुख्तलिफ हो जाते हैं हमारे इलाके के पौधे से। तो देखते हैं, दर्ज हरारत आबो हवा का एक अहम जुज़्व है, लाजमी हिस्सा है। किसी फल या फसल के लिए दर्जा हरारत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मसलन आम, केला, संतरा, माल्टा और अनानास वगैरह हर इलाके में इसलिए काश्त नहीं होते कि इन फलों की कामयाब काश्त के लिए आपको 52 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत दरकार है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों के फलदार पौधे मसलन सेब, नाशपाती वगैरह मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से मुनासिब नशो व नुमा नहीं पा सकते, और अगर हम ये पौधे लगाएं भी तो ये ख़राब हो जाते हैं। मज़ीद बरआं कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी अर्सा तक ज़्यादा दर्जा हरारत दरकार होता है। मसलन खजूर, इसके मुतालिक मशहूर है कि इसका सर आग में और पाँव पानी में होने चाहिए। इस वजह से खजूर की बहुतात उन इलाकों में होती है जो सख्त गर्म हो और जहाँ पानी भी मुयसर हो, जैसे साहिली इलाके में ख़ास तौर पे हैं, वहाँ पे ऐसा ही होता है कि ऊपर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और नीचे उनको पानी आसानी से मिल जाता है, तो उन इलाकों में खजूर ज़्यादा होती है। आप अगर मैदानी इलाके में रहते हैं तो आप देख लीजिएगा आपके इलाके में खजूर बहुत कम होगी या ना होने के बराबर होगी। बहुत अच्छी ज़मीनों में इसलिए फल काश्त नहीं किए जा सकते क्योंकि इन इलाकों का दर्जा हरारत इतना कम हो जाता है कि फूल और फल लगने के वक्त कोहर इन्हें ज़ाया कर देता है। कोहर से मुराद ये जो धुंध पड़ती है या सर्दियों में जो, अगर अब जिस दिन सर्दी ज़्यादा हो, आप सुबह जल्दी बाहर निकलें तो आपको पौधों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़नुमा पानी जमा नज़र आता है, इसे कोहर कहते हैं। इसकी वजह से पौधे की बढ़ोतरी पे बहुत असर पड़ता है और उसका फल या उसका फूल जो है वो अपनी सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता, ख़राब हो जाता है। कम दर्जा हरारत बाज़ दफ़ा बीमारियों और कीड़ों की अफजाइश का बायस भी बनता है। आड़ों के पत्तों का चुड़-मुड़ हो जाना और भूरी सरांड जैसी बीमारियां सर्द और नमदार मौसम में ज़्यादा फैलती हैं। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि पौधा जितना गर्म रहता है, जितना एक्टिव रहता है, जितना खुराक ठीक तरह से बनाता है, उसमें बीमारियों और जरासीम से लड़ने की ताकत भी ज़्यादा आती है। इसी तरह अगर उसका टेम्परेचर कम होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल कम होगा, धूप कम मिलेगी, तो इसकी वजह से उसके अंदर क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है तो उसमें बीमारियां भी ज़्यादा होंगी, जिनके एक मिसाल आड़ू के पत्तों का चूड़-मुड़ हो जाना है या भूरी सरांड जैसी बीमारियां, उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं फल, उसके फूल भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये आमतौर पर होती है, जिसकी वजह ठंडा मौसम या नमदार मौसम है, नमीदार या गीला मौसम है, हवा के अंदर नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है। दर्जा हरारत फूल और फल की खासियत नीज फल के पकने पर भी असरअंदाज होता है। अगर मौसम बहार में मौसम जल्द गर्म हो जाए तो फूल जल्दी निकल आते हैं। इसके बरक्स अगर मौसम देर तक ठंडा रहे तो फूल देर से निकलेंगे। सेब की ज़्यादातर अक़साम ठंडी आबो हवा में बेहतर होती हैं। इसके बरक्स आड़ू कदरे गर्म दर्जा हरारत में मीठे
और खुश जायका होते हैं। अंगूर गर्म इलाकों में तुर्श और मोटे छिलके वाले होते हैं। गर्म इलाकों की निस्बत सर्द इलाकों में पैदा होने वाला माल्टा कम तुर्श होता है। अब इसमें 4-5 चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो दर्जा हरारत, ये पौधे के फूल और फल निकलने में बड़ा असरअंदाज होता है, क्योंकि अगर दर्जा हरारत जल्दी बढ़ जाएगा मौसम बहार में, गर्मी जल्दी शुरू हो जाएगी तो उसके फल और फूल जल्दी निकल आएंगे। इसके बरक्स अगर वही गर्मी लेट हो जाती है या बहार के आखिर में बारिशें शुरू हो जाती हैं, इसकी वजह से गर्मी का आगाज़ लेट हो जाता है, तो उसके फूल भी देर से निकलेंगे। सेब निस्बतन गर्म इलाकों में भी होता है, लेकिन ठंडी आबो हवा वाले जो इलाके हैं वहाँ पे सेब की पैदावार बेहतर होती है। और आड़ू को अगर कदरे गर्म, थोड़े से गर्म दर्जा हरारत में ये फलें बढ़ें तो ये ज़्यादा मीठे, ज़्यादा खुश जायका होती है। अंगूर अगर गर्म इलाकों में काश्त किया जाए तो वहाँ पे ये खट्टे और मोटे छिलके वाले होते हैं। इसी तरह माल्टा अगर कम गर्म इलाकों में काश्त किया जाए तो ये तुर्श होता है। जैसे हमारे यहाँ मंडी बाउद्दीन, सरगोदा, ये काफ़ी गर्म इलाके हैं और वहाँ का माल्टा बड़ा मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की इतनी कोई नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे माल्टा जो होता है बड़ा मीठा और लजीज होता है। अब आप देख लीजिए, अगर आपने कोई सेहतमंद और तंदुरुस्त पौधा देखना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैसा ही है जो मुझे चाहिए। सबसे पहले पौधे सरसब्ज और शादाब नजर आएंगे। आपको देखने से ही पता चलेगा कि इस पौधे का तना, इसकी शाखें, इसके पत्ते, फूल जान में है, बेजान नहीं है, लटके हुए नहीं है, ढीले नहीं है। पौधे के पत्तों की शक्ल, सूरत, रंग और साइज फितरी होता है, यानी जितना आप देखेंगे ना तो उसके पत्ते या फूल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, आपको पता चल जाएगा, उनका साइज़ भी आपको नॉर्मल नज़र आएगा। पौधे दाग धब्बों से बिल्कुल पाक होते हैं, क्योंकि तंदुरुस्त होंगे, इनमें बीमारियां नहीं होंगी, तो उसकी वजह से इसमें दाग धब्बे भी नहीं होंगे, बीमारियों के निशानात भी नहीं होंगे। पौधे हर किस्म की बीमारी से पाक होंगे। ये पौधे सेहतमंद होते हैं, इसलिए ये पौधे दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। इसके अलावा पौधे के तने मजबूत और ज़मीन में मजबूती से खड़े होते हैं और गिरने की जानब माइल नहीं होते। इस पौधे का खड़ा होना आपको डिफाइन कर देगा कि ये सेहतमंद है या नहीं। पौधे के फूलों का साइज मुनासिब होता है और ये मामूली झटके से ज़मीन पर नहीं गिरते। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी हवा चलती है तो कई दरख्तों के पत्ते बहुत तेज़ से गिरना शुरू हो जाते हैं, जो एक वाज़ेह निशानी होती है कि ये पौधा बीमार है। पौधे की बढ़ोतरी पौधे की नस्ल के मुताबिक होती है, यानी अगर आपने काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं, जितने पौधे सेहतमंद होंगे वो सारे एक साथ एक ही साइज़ में एक ही जैसी बढ़ोतरी कर रहे होंगे, सिवाय उनके जो उनमें से बीमार होंगे। पौधों के फूल हर किस्म की बीमारियों और कीड़े के हमलों से पाक होते हैं। तो पौधों के जो फूल हैं ख़ास तौर पर उनको देख लें, बिल्कुल साफ़ फूल होंगे, फ्रेश होंगे, जो इस बात का सबूत होगा कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। पौधों के बीज और फल में यकसानियत और मुताबिकत होती है। पौधों का आप बीज देख लें, इसका फल देख लें, तो ये आप अगर एक से ज़्यादा बीज या एक से ज़्यादा फल लेते हैं तो वो देखने में उनके बीज और साइज़ वगैरह सारा उनका सेम होगा। उम्मीद है आपको इन टॉपिक से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर इस सीरीज़ का हिस्सा बना रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।